जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? जी बेटा, जी सब खैरियत से हैं? जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है जनाब। किधर है ये जैनुल हसन? भी आया हुआ है आज तो क्लास में, बड़ी बात है जी। क्या हाल है जैन? अल्लाह का शुक्र सर। सर आप हार्ली डेविडसन ले रहे हैं? ले नहीं रहा यार, ऐसे ही झूठे ले रहा था उसके। ऐसी बात भी कोई नहीं है, मूड बना तो ले भी नहीं लेंगे, सर, ऐसी आप तो वैसे टेंशन नहीं। लग रहे हैं, सूट करेगी आपको। वही कह रहा हूँ, हार्ली सूट करेगी आपको। हाँ नहीं, ऐसी कोई यार, असल में बात यह है कि हम फैमिली वाले हैं तो ज्यादातर जो है ना, कोशिश ये होती है कि गाड़ी पे जाया जाए। हम्म। ये तो मुंडे खुंडे हो ना ये तो फिर बंदा ये लेता और इस्तेमाल करता अच्छा लगता है। खैर, बिल्कुल सर। आज एमकॉम की क्लास किधर है? नामुल्ला जी, नाम? जी नामुल्ला, जी सर जी। नाम किधर है? आज आपकी क्लास की प्रेजेंटेशन थी। सर है कि प्रेजेंटेशन है क्लास में, बच्चों को पता है, अभी आज ज्वाइन कर लेते हैं। आपकी क्लास और अच्छा, चले मैं दूसरी क्लास से पूछ लेता हूँ, अगर किसी और की प्रेजेंटेशन तैयार है तो वो कर दे, बाकी फिर आपकी स्टार्ट कर देंगे। जी आयशा, जी आयशा तारिक, आयशा अहमद। नाम हमें स्टार्ट ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, तैयार है आप लोगों की प्रेजेंटेशन? सर आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मुझे आवाज, आवाज आ रही है मुझे। जी बेटा, प्रेजेंटेशन कौन करेगा? सर हम लोग ही पहले स्टार्ट करते हैं, नामुल्लाह का ग्रुप जो है। ठीक है जैनुल्ला, आप लोग जैनुल हसन आप लोग स्टार्ट करें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ये ने जी, ओके ओके शेयर सर। स्क्रीन। इनाम शेयर शेयर स्क्रीन कीजिएगा यार। मेरी स्टॉप ओके। शेयर हो गई है, ठीक है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम।
जी बस ये ओपन कर दो। सर करूं बिस्मिल्लाह? जी जी स्टार्ट करें। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। माय नेम इज जैनुल हसन, आई एम फ्रॉम एमकॉम एंड माय रोल number is 405. The topic that have been assigned to me is rupee method and percentage method. Quite a unique one as well. So let me start by concisely introducing my companies that I have analytically, compared together. That is Al Ghazi Tractors. जी जी। स्लाइड शेयर हो रही है आपको? नहीं नहीं। एक मिनट। ओके हाँ अब हो रही है। बस ठीक है। Okay. As I was saying, we have selected two companies to concisely compare their analytical stocks as well as their analytical ratios together to absolutely deduct the best company for shareholders and stakeholders. First of all, the company that we have selected is Al Ghazi Tractors. Al Ghazi Tractors is the epitome of tractors in Pakistan. They came here in 1983 when the industrial revolution was going on and the tractors were in a great demand. Basically, it's Al Futtaim Dubai concerned company. They started to manufacture tractors and is quite a bit in this business right now. And the second company that we have here is Miller Tractors. Miller Tractors is the best company in my opinion in Pakistan that is, making Massey Ferguson tractors that is up to the technological standards of current agriculture system. They came here about 2008 and got registered by ISO. They also have an agreement with Chinese firms to, manufacture Massey Ferguson tractors in Pakistan. So that's basically concisely about the companies. And as I'm going to start rupee and percentage method for these two companies, but furthermore, you need to understand the significance of these ratios and why we are doing it right now. These ratios are basically to demonstrate the investors and shareholders how a company is performing over time and can be used to estimate likely performance in the future. So that's the basic significant point of these company. I'm not going to take much of the class time, and I'm going to start the analytical breakdown of these companies. Okay, so in front of you there is an Excel sheet that states Millet's profitabilities and all the specs that they have in their financial policies. First of all, the sales in 2015 and 2016. Rupee method basically denotes that the difference between the sales or any cost of sales, the difference between first and the preceding year is the rupee method. So you can see that 22 million was in 2015 and in 2016 it was 16 million, obviously denouncing that there was a loss of 6 million rupee. It's basically a structure. That is what rupee method is. And then you see the percentage method. It states that minus 26.3%. This means that the overall production or the sales have deduced by minus 26.3%. It's a basic formula that you have to divide the difference with the first year, that is 2015, and you will get the minus 26.3% in the number form. And if I talk about the trend of Miller Tractors, you can see that there has been a recorded loss of sales of minus 6 million, and then a stunning profit in the 2007 calendar year, that is 13 million, and 77% of the profit were made that year. So the reason behind this is quite logical, because sometimes the company like to take it slow 1 year to make their reserves, and the next year their advertisement campaign, their contracts signature, and the fragile economy of our state corresponds to their getting increased in a rupee method or whatever the percentage is. So right now I'm going to compare this analytical portion with the Al Ghazi Tractors. When you see Al Ghazi Tractors is a bit different. They have been here since 1983. Their
parent group, that is Al Faktoum from Dubai, is not really concerned about their state right now about selling tractors. So that's why you can see that only 6 million sales were recorded in their time at the same period in 2015, where Al Ghazi tractors, Miller tractors, recorded 22 million. So the difference is pretty, pretty much obvious at this point. So I can go on and about the other assets and cost of sales and whatever, but the reason states that the years and the corresponding years were, more and more profitable for Millet as compared to Al Ghazi tractors. uh, uh, I mean, that's basically the portion, that's the concession thesis of my type of project. And then we have furthermore explaining um, Kadir, our group member. He will state the horizontal and vertical analytical portion of this of these two companies. Thank you very much, guys, and over to you. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल कदीर। आवाज़ आ रही है? मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और इसके अलावा जो वर्टिकल एनालिसिस है इनको डिफाइन करूँगा। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कर दूं? जी हेलो जी जी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आवाज़ आ रही है? जी तो ठीक है, कैरी ऑन करें बेटा, खामोश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, ऊंचा बोलिएगा प्लीज। सर जी सर, मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डिफाइन करने जा रहा हूँ, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट। इसमें हम ईयरली जो होता है हम कंपैरिजन करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले ईयर के साथ, और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इन कंपैरिजन ईयर, उसमें से माइनस करते हैं हम अमाउंट इन बेस ईयर ओवर बाय अमाउंट इन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होता है, जो हमें उसकी परसेंटेज निकालनी होती है कि कितने परसेंट हमारा डिफरेंट आया है कंपैरिजन ईयर के साथ। और इसमें जैसे कि मेरे पास है मिलत प्रॉफिट जो है, मिलत का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने निकाला है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में, तो इसके पास हमारे पास है जैसे कि इसमें हमारे पास 2015 से लेकर हमने 2020 तक इसमें कंपैरिजन किया है। जैसे कि देखा जाए कि हमारी जो सेल्स है वो कहते हैं 22 बिलियन जो है हमारी मिलियन हुई थी सेल 2015 में, और 2016 में हमारी 16 मिलियन है। तो इसका कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो है इसका जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमें कॉस्ट ऑफ सेल की वजह से हमें जो है वो कम हुआ है, क्योंकि इसमें जो था हमारी सेल भी ज़्यादा थी, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा आया था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का हमें कम हुआ। उसके बाद इसी तरह जैसे इसमें है हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट है। हेलो हेलो जी बेटा आप बोलते रहे, हमें आ रही आवाज। जी कदीर, हेलो कदीर। अब्दुल कदीर जो है ना वो क्लासेस में आता नहीं है, तो इसलिए आज परेशानी हो रही है उसको क्लास में आके। तो सही कह रहा हूँ? मैं भी सर उसने तैयारी तो की थी, आज मिलके तैयारी की है। चले शाबाश, कोई बात नहीं, उसी को करे शाबाश, कोई मसला नहीं। कदीर आर यू हियर? चलो नेक्स्ट कौन कर रहा है? नेक्स्ट आई थिंक सना महम का बनता है। अच्छा, महम ज्वाइन है क्लास में? जैन देखना, महम ने क्लास ज्वाइन की हुई? I think we should carry on. Sana,
इनाम आप करो अपना प्रेजेंट, देन सना। सर वो कदीर का वाईफाई बंद हो गया इसलिए कह रहा है नहीं चल रहा। चले मैं कोई अपना बात नहीं, पोर्शन कैरी ऑन स्टार्ट। करें, अगला बंदा कैरी ऑन करे। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर रेशो जो है वो मेरा पोर्शन है और मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मेरे मेंबर्स जो हैं वो अपना अपना पोर्शन आई थिंक कर चुके हैं। अलगाजी ट्रैक्टर्स में देखते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे जब लॉन्ग टर्म क्रेडिटर रेशोज हैं, इसमें डेट रेशो देखेंगे, इक्विटी रेशो देखेंगे और डेट इक्विटी रेशो देखेंगे और इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे विद इन ईयर्स 2019 टू 2020। इसमें डेट रेशो जो है वो टोटल लाइबिलिटीज जो हमारी अलगाजी की हैं और टोटल एसेट के साथ इसको देखेंगे डेट रेशो को। इसमें हमारे पास जो 2019 में इसकी डेट रेशो आ रही है 0.83 है, जबकि 2020 में 0.56 है और इसकी जो डेट रेशो वो कम हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2019 में इसकी टोटल लाइबिलिटीज 45,71,666 की थी, जबकि यही लाइबिलिटीज 2020 में 28,95,322 की परसीड रह गई हैं। और इसकी लाइबिलिटीज में तो ईयर्स वाइज जो है वो डिक्रीज आया है, बट इसके जो टोटल एसेट्स हैं वो भी डिक्रीज हो गए हैं 2020 में और इसी वजह से इसकी रेशो जो है वो डेट रेशो कम हो रही है 2019 की निस्बत 2020 में। अगर इसकी इक्विटी रेशियो देखी जाए तो इसकी इक्विटी रेशियो में हमारे पास टोटल जो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है वो 9,03,717 की है, जबकि जो हमारे पास इक्विटी रेशियो 2020 में है इसकी अलगाजी की वो 22,88,122 की है। इसकी जो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है वो भी 2020 में कम होती जा रही है और जो इसके टोटल एसेट है वो भी 3 लाख से कम कर गए। 4,75,383 के थे 2019 में, जबकि वो 2020 में जो है 51,83,444 के लगे हैं, जिसकी वजह से इसकी इक्विटी रेशियो जो है वो 0.17 से 0.44 पे पहुंच गई है। और हमारे पास इसका जो इक्विटी स्टैंडर्ड जो है वो एक जो है वो स्टैंडर्ड वो 2 तक है। The optimal debt to equity ratio will tend to vary widely by industry, but the general consensus is that it should not be above level of 2 points. In other words, अगर हम देखते हैं डेट इक्विटी रेशियो को तो उसमें दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है, डेट और इक्विटीज का। ये नॉर्मली जो है 5 से अबव नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो के इसमें ये 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसमें हम बल्कि देख लेते हैं पहले इसकी वैल्यूज को। इसकी जो टोटल लाइबिलिटीज हैं वो तो सेम है जैसे कि ऊपर बताई थी मैंने डेट रेशो में, और जो इसका टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है वो 9,03,717 से इंक्रीज करके 22,88,122 पे कर गई है, जिसकी वजह से इसकी डेट इक्विटी रेशियो 2019 में 5.06 थी और इक्विटी रेशियो मींस कि डेट ओनली आर इन्वेस्टेड बाय आउटसाइड लायबिलिटीज, इट शोज अ वीक पोजीशन ऑफ द कंपनी। Secondly, in the 2020 equity ratio is 1.27, which means that only 27% are invested by the stockholders. It shows not a strong position of the company. Secondly, हम लोग देखते हैं मिल्लत फैक्टर, जैसे कि उसका इक्विटी हमने अलगाजी का देखा है 2019 को 20 के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। इसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पे इनामुल्लाह जी सर, ये डेट 83% है इसका। सर डेट 83% है डेट रेशियो उसकी। सर वो गाजी की, हाँ जी, जी सर। अच्छा, डेट बहुत ज्यादा नहीं है इसका। आपने सर ज्यादा है आपने फिगर्स देखी नहीं? सर, देखी नहीं। चले ठीक है, कैरी ऑन। और मिल्लत अगर मिल्लत को देखते हैं तो इसकी रेशियोज उसके कंपैरिजन अलगाजी से स्टैंडर्ड पे फॉल करती हैं।
यहाँ पे रेशियो जो इसकी है 0.54 है, जबकि नॉर्मली जो डेट रेशियो का स्टैंडर्ड है वो 0.3 से 0.6 मतलब 30 to 60% होना चाहिए। और ये जो 2019 की डेट रेशियो है वो उसमें फॉल कर रही है, और जो 2020 की डेट रेशियो है वो थोड़ा सा क्रॉस कर रही है। नॉर्मल हमारे पास जो ये इसकी जो होती है लिमिट होती है वो 3 से 6 होती है डेट रेशियो की, और ये उससे बेहतर परफॉर्म कर रही है अलगाजी से। और अगर इसकी इक्विटी रेशियो को देखा जाए तो वो इसमें जो टोटल एसेट्स हैं इसमें वो 2019 में तो कम थे, जबकि 2020 में 3 लाख से इंक्रीज कर रहे हैं। और जो इसके टोटल स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी है वो तो सेम है दोनों के लिए, बट जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं 2020 में, और इसकी इक्विटी रेशियो जो है वो 2019 में ज्यादा, जबकि 2018 में कम हो रही है। और इसका स्टैंडर्ड जो है नॉर्मली 2 है, तो ये दोनों में इक्विटी रेशियो जो है वो इसकी इंक्रीज कर रही है, ये स्टैंडर्ड रेशियो से ज्यादा है। अगर इसी तरह डेट इक्विटी रेशियो को देखा जाए तो वो भी हमारे पास जो इसका स्टैंडर्ड है वो 1.5 है, और इसका मतलब है कि कंपनी इन अ क्वेश्चन हैज 1.5 डेट फॉर एवरी वन ऑफ द इक्विटी। मतलब अगर उसका डेट 1.5 है तो उसका इक्विटी 1 इक्विटी के अगेंस्ट वो 1.5 उसका डेट है। और यहाँ पे इसका 2019 में 1.41 है डेट इक्विटी रेशियो, और 2020 में 1.65 है। इट मींस कि इसका इक्विटी के अगेंस्ट 1 के अगेंस्ट 1.65 2020 में डेट जो है इसका इंक्रीज कर गया, और 2019 में इसका कम था। और ये जो ओवरऑल मिलेट ट्रैक्टर्स हैं ये अलगाजी से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ओवरऑल इनका प्रॉफिट भी बेटर है, और इनकी रेशियोज जो हैं वो भी अलगाजी से बेटर है। द नेक्स्ट टर्न इज महम सलीम। महम आप क्लास में हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें आप स्टार्ट करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। Sir, I am going to explain the concept of short creditor and working capital. First, I am discuss about current ratio. सर 2019 और 2020 का है, यहाँ पे हमने कंपेयर किया है। इसमें हमने 2 कंपनीज ली हुई है, एक मिलत ली हुई है और दूसरी हमने अलगाजी ट्रैक्टर ली हुई है। करंट रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है, जिसकी वैल्यूज है वो हमने बैलेंस शीट में से ली है। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रेशियो आई है 1.39। करंट रेशियो इज नॉट गुड, इट मस्ट बी 2.0, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल रेशियो होता है करंट रेशियो वो हमारे पास 2:1 होता है, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल नहीं है, तो इट्स मीन दैट द कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड टू पे इट्स शॉर्ट टर्म डेट। एज कंपेयर टू 2020 करंट रेशियो की हमारे पास आई है 1.22। In 2020, the current ratio is 1.2. It measures that company current position is too much weak, क्योंकि ये भी उसको अचीव नहीं कर सकी, क्योंकि 2019 से भी बहुत कम है। Is too much weak to pay its short-term debts because in 2020 current assets has been decreased. उनमें कमी वाक़या हुई है इस वजह से। इसकी अगर हम क्विक रेशियो की बात करते हैं तो 2019 और 20 का कंपेयर करते हैं तो क्विक रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो हमारे पास आई है 0.83। In 2019, quick ratio of Millet is not good at show the company's current asset consist of inventory and prepayments. It should be less 1. इसलिए ये 1 से बहुत ज्यादा कम है, नॉर्म हमारा 1 होना चाहिए, इसलिए बहुत कम आई है। एज कम्पेयर टू 2020 इसकी क्विक रेशियो आई है 0.61, ये डिक्रीज हुई है 2019 से भी। तो इन 2020 द रेशियो हैज डिक्रीज बिकॉज द इन्वेंट्री एंड प्रीपेमेंट हैज इंक्रीज ड्यू टू कोरोना सिचुएशंस। नाउ आई डिस्कस अबाउट वर्किंग कैपिटल। इनाम वर्किंग कैपिटल रेशियो ला दो।
जी सर, इसमें हम 2019 और 20 का कंपैरिजन करते हैं। 2019 नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो 7 लाख समथिंग है, और हमने इसकी इन्वेंट्रीज निकालनी है। उसमें से हमने एवरेज इन्वेंट्री निकाली है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है, उसके बाद इसकी अमाउंट में से हमने इन्वेंट्री मतलब फॉर्मूले में पुट करके इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाली है, जो हमारे पास आई है 6.90। और अगर इसका कंपैरिजन करें 2020 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आई है 5.34। एज कम्पेयर टू 2019, 2020 जो है वो डिक्रीज हुआ है। थैंक यू। आप क्लास में? जी जी। अच्छा, आप अपना start हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सना इरफा, और जब मेरा टॉपिक है मैं एक्सप्लेन आप करूंगी working एनालिसिस capital ऑफ कॉमन स्टॉक वाला है मेरा। कितने मेंबर्स हैं आपके ग्रुप के? इसको बैक कीजिए। नहीं सर सना, लास्ट है ये। कितने 5 मेंबर हैं आपके ग्रुप के? जी सर, 5 मेंबर्स। चलो ठीक 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 है सना, खत्म करो अपना। जी, तो मेरा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो होता है वो करता क्या है। ये इसलिए कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी distributable to common stockholders if a company were to liquidate its assets। इसका मतलब है कि जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है अमाउंट को मेजर करने के लिए, जबकि कंपनी जब लिक्विडेट करती है अपने एसेट्स को, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जब हमने डिवाइड मतलब अमाउंट देनी होती है, मनी देनी होती है लिक्विडेशन पे, एसेट्स के लिक्विडेशन पे, तो वो उस अमाउंट को मेजर करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें हमने 2 कंपनीज ली हैं, एक ली है अलगाजी ट्रैक्टर और एक ली है मिल्लत ट्रैक्टर। तो हमने इसका 2 इयर्स का कंपैरिजन किया है, क्योंकि कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का जैसा हमें एनालिसिस मिला था वो 2 इयर्स का हमने करना था, एक मिल्लत ट्रैक्टर और एक अलगाजी ट्रैक्टर का। तो इसमें हमने शेयर होल्डर्स इक्विटी फाइंड करनी थी 2019 की और 2020 की। तो इसका फार्मूला होता है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हमने शेयर होल्डर्स इक्विटी लेने के लिए हमने यहाँ पे इनका कंपैरिजन करने के लिए जब हमने अमाउंट्स निकाली, तो हमारा 2019 में जो कंपनी है हमारी अलगाजी की, तो हमने यहाँ पे जब इसकी अमाउंट ली तो वो आई 48,33,167, और जो हमने टोटल एसेट्स लिए उसमें था हमारे 10,57,574,184। तो हमने जब इसकी परसेंटेज ली तो ये 46 आई थी 2019 में, और जब हमने 20 में इसका कंपैरिजन किया तो हमारे जो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी थे वो थे 4072,076, जबकि 2019 में ये ज्यादा थे और 2020 में ये कम है। और जो इसके एसेट्स थे वो भी 2020 में ज्यादा हैं और 2019 में कम थे, इसलिए इसकी परसेंटेज भी कम आई है, 38% आई थी हमारी 2020 में। और इनाम इसकी सेकंड फाइल ओपन करें, मिलर ट्रैक्टर वाली। तो यहाँ पे भी हमने इसका यही फॉर्मूला लगाया था कि शेयर होल्डर्स इक्विटी हमने इसमें फाइंड करनी थी। तो हमने जब 2019 में देखा तो हमारे टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी जो थे वो थे 9,33,717, और टोटल जो एसेट्स थे वो हमारे यहाँ पे 2020 से ज्यादा थे 5,475,383, और जिसमें 17% हमारे आई थी शेयर होल्डर्स इक्विटी, और 19 में हमारी इक्विटी आई थी 44%, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी थी वो ज्यादा थी और जो हमारे टोटल एसेट्स थे वो कम थे। थैंक यू। सर कदीर ने ज्वाइन की है क्लास? कदीर इज हियर? जी कदीर बैठा हुआ है।
कदीर खामोशी से बैठा हुआ है। कदीर आप सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? चले आपकी बाकी हो गई है। जी सर, बाकी हो गई Yes, है sir, हो तो गई उसको है। report- अच्छा आप इसका कंक्लूजन दें आप। कंक्लूडिंग सर इसका रिमार्क्स दें। इनामुल्लाह कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें इसके ऊपर। जी सर, मैंने कहा कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें इसके ऊपर, फाइनल करें, खत्म करें इसको। सर कंक्लूजन इस तरह से इसका हो रहा है कि जो मिलत ट्रैक्टर्स हैं वो इनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और ओवरऑल जो उनकी सेल्स हैं वो भी अलगाजी से बेटर हैं। उनकी कस्टमर डिमांड भी ज्यादा है, और ओवरऑल 2019 में भी उनकी सेल्स ज्यादा थी इनसे अलगाजी ट्रैक्टर से। अलगाजी जो है वो इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है, बट एक स्टैंडर्ड और सेंटर क्लास की वो भी जो है वो सेल्स कर रही हैं। सेकंड ये कि जो मिलेट ट्रैक्टर्स है उसकी जो पॉलिसीज हैं ऑन रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो इस तरह से जो है मार्केट को अवेल कर रहे हैं कि उनकी जो मैक्सिमम सेल्स हैं वो इससे अलगाजी से बहुत बेहतर हैं, और वो इससे क्वालिटी वाइज भी इम्प्रूवमेंट में है मिलर ट्रैक्टर्स। और इनका जो ओवरऑल हम लोगों ने इनका एनालिसिस किया है, उसकी सेल्स से ज्यादा है, उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो उससे बेटर है, कम है, क्योंकि वो लोग जो है मिलत वाले वो डेट को कम ले रहे हैं, अलगाजी वाले जो है वो ज्यादा ले रहे हैं। और इसके जो है ओवरऑल जो है वो ये कंपनी जो है इसका जो एनालिसिस करने के बाद यही हमें समझ आती है कि वो उससे बेटर परफॉर्म कर रही है अलगाजी की निस्बत। अच्छा ठीक, चले। तो थैंक यू कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, अलगाजी में या फिर मिलर ट्रैक्टर्स में? सर। मिल्लत में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या चांस होता है तो हम मिल्लत में इन्वेस्ट करेंगे। चले, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा ग्रुप करेगा भाई अब? थैंक यू वेरी मच इनाम एंड ग्रुप। रफाकत जी, रफाकत जी बेटा, एम कॉम में से कोई प्रेजेंट करना चाहता है? सर हम कर दें? जी जी आप करें। इसरार वकार। यस स्टार्ट करें। स्टार्ट करें बेटा। करो। रुखसाना को बुलाओ, उसने स्टार्ट करना है। रुखसाना स्टार्ट कर दो। फाइल शेयर कर रहा है कोई? मैंने शेयरिंग ऑप्शन दी हुई है, आप लोग फाइल शेयर करेंगी। इसरार फाइल शेयर कर दो, तुम्हारे पास फाइल पड़ी हुई है, मेन करो शेयर। यार अरसलान आयशा को बोल दो, वो कर देगी यार। इसरार आप मुझे सेंड कर दे, मैं कर देती हूँ शेयर फाइल। थैंक यू, मैं आपको अभी सेंड करता हूँ। ओके। देखो
जी बेटा अभी तक शेयर नहीं हुई। सर मैंने शेयर करनी है, मुझे अभी तक फाइल ही नहीं मिली। ढूंढे ढूंढे जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। Sir, my group names are Waqar, Israr, or Muhammad Arslan, or my name is Ruxana. I explain the rupees percentage or horizontal or vertical analysis. First of all, I explain the rupees percentage. To find the percentage of rupees analysis 2019 and 2020. Percentage analysis formula base year minus current year minus base years. 2019 में हमारी जो सेल्स हैं वो है 4% और 2020 में हमारी जो परसेंटेज है वो -33 चली गई हैं। और नेक्स्ट में है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, वो हमारी भी 3% ही है। और 2019 और 2020 में हमारी जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स -23% में चली गई हैं कोविड-19 की वजह से। ग्रॉस पर 2019 हमारा पॉजिटिव है, वो 5% में है 5। और 2020 में -44 में है ड्यू टू कोविड-19। सर इसमें 2022 में 20 जो हमारी वैल्यूज हैं वो माइनस में जा रही हैं कोविड-19 की वजह से। और बैलेंस शीट में हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो 3% में है और 20 में जो है वो 82% है। टोटल एसेट रुपीस हमारी 5 मिलियन थी लगभग और इसकी परसेंटेज -1 थी। और 2020 में हमारी जो वैल्यू थी वो नेगेटिव में है, परसेंटेज -12 में टोटल करंट रुपीस में। और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारी वैल्यू थी 2019 में वो 39 मिलियन थी इन परसेंटेज 200